So today we will revise the grammar portion, chapter 1, the sentence. So first of all, tell me what do you mean by sentence? What do you mean by sentence? या फिर what is the meaning of sentence? What do you understand by sentence? What is a sentence? कैसे भी क्वेश्चन फॉर्म किया जा सकता है. Yes. शालिनी. Sentence is a group of words that make complete sense. Okay. Sentence is a group of words that make complete sense. Okay. Now tell me what is a phrase? What is a phrase? पहले differentiate कर लेते हैं between sentence, phrase and clause. Yes. What do you mean by phrase? Phrase. Shalini. Phrase is a group of words that make incomplete sense. That not gives us complete sense या फिर incomplete sense, जो हमें complete sense किसी भी चीज की नहीं देता है. For example, example के लिए in the morning. In the morning. So in the morning क्या है? एक phrase है. ठीक है, ये हमें कोई मीनिंग तो दे रहा है, कोई बात तो बता रहा है, लेकिन इट इज इनकम्प्लीट. ये इनकम्प्लीट है. इन द मॉर्निंग. बट अगर मैं बोलूं आई वोक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, सो इट इज अ सेंटेंस. इट इज अ सेंटेंस, बट ओनली द वर्ड्स इन द मॉर्निंग इज अ फ्रेज. ये एक फ्रेज है. ओके, चलिए. Types of sentences. Who will tell me? Types of sentences. Who want to tell? मैम बताएं. Meghraj. Meghraj, you want to tell? मैं assertive, interrogative, imperative में explanatory और Optative. Okay, very good. optative. Very well done, Meghraj. Very. आज फर्स्ट डे क्लास अटेंड कर रहे हो, so but very good. मेघराज, आज फर्स्ट डे क्यों अटेंड किया क्लास? ओके, as like Meghraj tell, the types of sentences are assertive or declarative, second interrogative, third imperative, fourth optative, fifth exclamatory sentences. So now tell me, what do you mean by assertive sentences? What do you mean by assertive or declarative sentences? Tell me, class. Raise your hands if you know the answer. Ma'am, sentence which give a simple sentence is called assertive sentence. Okay, simple sentence is called a, या फिर simple statement is called an assertive sentence. Okay, please raise your hand, Meghraj. Please raise your hand if you want to give the answer. Okay. Yes. So now assertive sentence means simple sentence. जैसे I am a girl, she is a beautiful girl, you are smart, she is intelligent. So these are simple statements, simple sentences. तो इन्हें क्या कहा जाता है? assertive या फिर declarative sentence. ठीक है. Next is interrogative sentences. So what do you mean by interrogative sentences? Chaya. A sentence that asks a question is called interrogative sentence. The sign of the interrogative sentence. The sign of interrogative sentence. Question mark. Question mark. And give me an example, Chaya. What is your name? What is your name? Very good, Chaya. Very well done. Okay. So in interrogative sentences, we ask questions. हम यहाँ क्वेश्चंस पूछते हैं. वो क्वेश्चंस कैसे भी हो सकते हैं. ठीक है. एंड द साइन ऑफ द इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस इज क्वेश्चन मार्क. क्वेश्चन मार्क के साथ एंड किया जाता है इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस को. बट इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस जरूरी नहीं है कि वो सिर्फ आपसे WH फैमिली के साथ ही फॉर्म किए जाएंगे. सिर्फ WH फैमिली से ही क्वेश्चन है. हेल्पिंग वर्ब. हेल्पिंग वर्ब के साथ भी क्वेश्चंस को पूछा जाता है. हम हेल्पिंग वर्ब के साथ भी क्वेश्चन पूछते हैं. For example, is
she your sister. sister. Is she your sister? So यहाँ पर मैंने हेल्पिंग वर्ब को यूज किया. आप बोलोगे मैम वट तो है ही नहीं, वट नहीं है, विच नहीं है, हु नहीं है, तो मैम क्वेश्चन कैसे पूछा जा रहा है? बट ये क्या पूछा गया? इज शी योर सिस्टर? क्या यह तुम्हारी बहन है? तो बेटा ये भी तो एक क्वेश्चन ही है, ये भी तो क्वेश्चन पूछा जा रहा है. मैं कई बार पूछती हूँ आर यू, सॉरी, आर यू, wait, turn off your mic. Are you listening my voice? Are you listening my voice? So it is also a question. It is also a question. क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? So it is a question. ये भी क्वेश्चन है, बट ये हेल्पिंग वर्ब के साथ स्टार्ट हो रहा है. is, am, are, was, were, has, have, had. तो कुछ भी अगर हम सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब को यूज करते हैं, इट मींस वहां पर क्वेश्चन पूछा जा रहा है, आपसे क्वेश्चन आस्क किया जाता है. तो ये भी कौन सा आपका सेंटेंस हो जाएगा? इंटेरोगेटिव सेंटेंस हो जाएगा आपका. इंटेरोगेटिव सेंटेंस है आपका. ठीक है, तो कंफ्यूज मत होना कि ये क्वेश्चन कैसे है. नेक्स्ट देखिए. Next type is exclamatory. Who can tell me the type of the exclamatory? Anuj. Yes, Anuj. A sentence that express strong feeling is called an exclamatory sentence. जहां पर कोई आपको स्ट्रॉन्ग फीलिंग बताई जाती है, मीन्स जहां पर आप अपने फीलिंग्स को एक्सप्रेस करेंगे, उसे कहते हैं हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस. एंड अनुज, व्हाट इज द साइन ऑफ द एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस? अनुज, साइन ऑफ द एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस. मैम साइन तो पता है, लेकिन मैम उसको बोलते क्या मैम, ये याद नहीं आता. एक्सक्लेमेटरी मार्क बोलते हैं उसे. एक्सक्लेमेटरी मार्क क्या बोलते हैं? यस मैम, एक्सक्लेमेटरी मार्क. एक्सक्लेमेटरी मार्क बोलते हैं. एंड द साइन इज, कैसे बनाते हैं उस साइन को? ध्यान से देखो. वेट अ मिनट. मैम एक लाइन, फिर उसके नीचे एक डॉट. दिस वन. ये क्या कहते हैं इस साइन को? एक्सक्लेमेटरी मार्क या फिर एक्सक्लेमेटरी साइन कहते हैं. और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस को क्यों यूज किया जाता है? जहां पर अपनी सडन फीलिंग्स को, अपनी फीलिंग्स को हम शो करते हैं, उन्हें एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस कहा जाता है. नाउ नेक्स्ट इज ऑप्टेटिव. ऑप्टेटिव. Who can tell me the optative sentence? Swati. Yes, beta. What do you mean by optative sentence? Kanchan, can you please turn off your mic? Wait, Swati, wait. Now repeat your answer. Optative sentence are those sentences that स्वाति, शायद आपके माइक, लिसन, आपके माइक में शायद कुछ प्रॉब्लम है. ठीक है, माइक बिल्कुल आवाज क्लियर नहीं आ रही. एक बार माइक चेक करो. ऑप्टेटिव सेंटेंसेस. यस निखिल. यस मैम. यस. मैम बताएं. यस बेटा. मैम ऑप्टेटिव सेंटेंस मैम आर दोज all that express wishes. मैम wishes को Wishes. एक्सप्रेस करता है. That expresses your wishes. The sentences that expresses your wish. जहां पर आप किसी के लिए विश करते हैं, may you live long, may God bless you. So these are wishes. आप किसी के लिए दुआ मांग रहे हैं. So these are optative sentence. Optative sentence में हम किसी के लिए कोई प्रेयर करते हैं, कोई दुआ मांगते हैं. May God live long. ठीक है, may God bless you. So these are wishes जो हम किसी को विश करते हैं. ठीक है, लास्ट वन इज इम्पेरेटिव. इम्पेरेटिव सेंटेंसेस. सोहेल.
A Ma'am, I can sentence that expresses a command request, advice is called an expletive sentence. Imperative sentence. Okay. Imperative sentence. A sentence that expresses a command, advice, suggestion, ठीक है, request, order. So these are imperative sentence. जहां पर आपको कोई order दिया जाए. क्लास स्टार्ट होते हैं मैं क्या कहती हूँ? ओपन योर बुक्स एवरीवन. ये क्या है? ये क्या है? Imperative sentence है, order Order. है. ठीक है. Can you please give me a pen? Ma'am, request. रिक्वेस्ट है. से कौन सा टाइप का सेंटेंस है? इम्पेरेटिव है, जहां पर आप किसी के साथ किसी से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, सजेशन दे रहे हैं. वो क्या है? क्लोज द डोर, ओपन द डोर. तो ये क्या है? कमांड है. ठीक है. ओपन योर बुक्स एवरीवन. प्लीज पुट योर माइक ऑन म्यूट. पुट योर माइक ऑन म्यूट. ऑर्डर है ना? ऑर्डर है. यस. अगर मैं बोलती हूँ प्लीज टर्न ऑफ योर माइक एवरीवन, सो इट इज अ रिक्वेस्ट. मैम रिक्वेस्ट. क्योंकि मैंने प्लीज वर्ड ऐड कर दिया है आपसे. प्लीज वर्ड ऐड करके बोला है, तो मैंने पोलाइटली बात की है. ठीक है. वो क्या हो गया? वो रिक्वेस्ट हो गया. चलिए, नाउ टेल मी. नाउ इट्स द टाइम टू आस्क क्वेश्चंस एवरीवन. सो डू यू लाइक आइसक्रीम? Which is the type of the sentence this is? Do you like ice creams? Ma'am, Beta, echo. Yes. Interrogative. Do you like ice creams? Interrogative. Yes. Next is listen to what I say. Listen to what I say. मैं क्या कह रही हूं, मुझे सुनो. Yes. Pritha. Imperative. Imperative. Why, Pritha? Can you tell me why? Why it is an imperative sentence? मैम क्योंकि इम्पेरेटिव सेंटेंस में हम किसी को कमांड या रिक्वेस्ट करते हैं. कमांड या रिक्वेस्ट. उससे रिक्वेस्ट. तो मैंने क्या किया? मैंने कमांड की है, रिक्वेस्ट की है? कमांड की है. मैंने बोला लिसन टू व्हाट आई से, मुझे सुनो मैं क्या कह रही हूँ. तो इट्स एन ऑर्डर या कमांड. ओके. मे गॉड ब्लेस यू विद गुड हेल्थ. मे गॉड ब्लेस यू विद गुड हेल्थ. अनुज. Yes, ma'am. Yes. Exclamatory sentence. Exclamatory. Why, Anuj? Why it is an exclamatory sentence? मैम फीलिंग है मैम. What मैम उसकी feeling? फीलिंग है What कि मैम feeling? गुड रहो मैम, तुम अच्छे रहो. अच्छा, एक सेकंड. मैम एक्सक्लेमेटरी. And why, Suhani? Why it is an exclamatory sentence? मैम इसमें शायद गुस्से वाली फीलिंग आ रही है. हमने अपनी फीलिंग शो करी. हमने हैरान होकर बोला कि वो मुझसे कैसे ऐसे बात कर सकता है. तो यहाँ पे मैंने अपनी फीलिंग शो की है. ठीक है. So it is an exclamatory sentence. So chapter 2 is complete now. Classification of the sentence. Phrases, compound. Okay. ठीक है. Just a minute. What are the kinds of the sentence on the basis of their structure? ऑप्शन देती हूँ मैं. ठीक है ना. मैं ऑप्शन दे रही हूँ. ठीक है. फर्स्ट ऑप्शन इज सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट. सेकंड ऑप्शन असर्टिव, इंटेरोगेटिव, एक्सक्लेमेटरी. थर्ड ऑप्शन सिंपल, कंपाउंड एंड कॉम्प्लेक्स. So now tell me. अब बताओ. शालिनी. Ma'am, simple, compound, complex. सिंपल, कंपाउंड एंड कॉम्प्लेक्स. वी आर टॉकिंग अबाउट द स्ट्रक्चर के बेसिस पर मैंने काइंड्स पूछे हैं. सो इस तरीके के क्वेश्चंस फॉर्म हो सकते हैं बेटा. ठीक है. फर्स्ट हमने जो क्लासिफिकेशन अभी हमने डिस्कस किया था, द काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस बेस्ड ऑन देयर मीनिंग.
ठीक है। मीनिंग के बेसिस पर हमने डिस्कस किया था, तो मीनिंग के बेसिस पर 5 काइंड्स हमने डिस्कस किए थे, डिक्लेरेटिव, बाकी जो इंटेरोगेटिव, इंपेरेटिव, एक्सक्लेमेटरी एंड ऑप्टेटिव, वो मीनिंग के बेसिस पे थे। ठीक है। अब मैंने डिस्कशन की है अबाउट द स्ट्रक्चर, काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस बेस्ड ऑन देयर स्ट्रक्चर, कि किस तरीके से स्ट्रक्चर फॉर्म किया जाता है, सेंटेंसेस को फॉर्म किया जाता है। तो सिंपल, कंपाउंड एंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस, जहां पर दो सेंटेंसेस को जोड़ा जाता है। कंपाउंड मीन्स जोड़ना, जहां दो सेंटेंसेस को जोड़ा जा रहा है विद द टर्म ऑफ फैन बॉयज। फैन बॉयज मीन्स, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फैन बॉयज? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फैन बॉयज? कौन बताएगा? Fan boys is the group of some conjunctions. The term fanboys is a group of some conjunction. Fanboys की जो टर्म है वो यूज की जाती है कुछ कंजक्शंस के लिए, जहां पर एवरी अल्फाबेट का कुछ मीनिंग होता है। फैन, फोर, ए, एंड, एन उसका कोई मीनिंग होगा, बी उसका कोई मीनिंग है। ठीक है। यहाँ पर हर अल्फाबेट का किसी ना किसी कंजक्शन से कनेक्शन है। एंड आई हैव ऑलरेडी सेंड यू दिस वन। आई डोंट थिंक कि आपने किया होगा, बट मैं पहले ही सेंड कर चुकी हूँ फैन बॉयज का स्टेटमेंट। फैन बॉयज का ये मीनिंग होता है। ठीक है। फैन बॉयज एक बार मेंशन कर सकते हो आप। फैन बॉयज में एफ का मीनिंग है फोर, ए एंड, N nor, B but, O or, Y yet, S so. Can I repeat? One more मैं time. मैम कौन? Abstract. Abstract, yes. Abstract noun है laughter. अच्छा, bravery, bravery. मैम ये भी एब्स्ट्रैक्ट है। अच्छा, gold, gold. मैम मटेरियल Material noun. Material. Very good. Okay. Butterflies, butterflies. मैम कॉमन नाउन मैम कॉमन नाउन। Common noun है। Audience, audience. मैम कलेक्टिव नाउन। Collective मैम noun है। कलेक्टिव। Collective noun है। Team, team. मैम कलेक्टिव Team, नाउन। कलेक्टिव Class. कलेक्टिव Okay, 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 done.